Hello and welcome to this session on mastering time hacks to beat procrastination. So, if you are somebody who wanted to take some input on time management, especially for your CAT preparation, then this is the session for you to be in. And there are plenty of people who ask us about it. यार बहुत लोग हर हफ्ते पूछते रहते हैं, सर टाइम कैसे मैनेज करें, सर कॉलेज के साथ कैसे काम करें, वर्किंग हूँ, जॉब के साथ कैसे मैनेज करूँ। तो उन सब चीज़ों की आज हम बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम अपने प्रेपरेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सो दैट वी बिकम really, really successful in this particular journey. But then, first up, let me ask you a question. And the question is, you know, what do you think? What percentage of students say that they suffer from chronic procrastination? कि तुमको क्या लगता है कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि यार प्रोक्रास्टिनेशन होती है, यार काम नहीं होता, काम को टालते रहते हैं, डिले आते रहते हैं. What is that percentage going to be? What's your guess? Well, I'll tell you, there have been researches that suggest that almost 75% of the students, the number is actually close to 73%, say that they actually struggle with procrastination, they struggle with time management. And I'm sharing this stat with you to tell you just one thing, and that is you are not alone in it. ये बहुत कॉमन स्ट्रगल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बिकॉज इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम वी एक्चुअली ऑल्सो हैव plenty of solutions that are likely to work. तो चलिए देखें, लेट्स मूव ऑन. एक चीज बताइए, आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टेटमेंट विद यू. यू नीड टू टेल मी वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. So you can pause the video right here, look at this statement and share your opinion with me. So I will tell you what my answer to this statement is. This statement is false. Now you may look at it and wonder, yaar, false? क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग टाइम, नाम में लिखा हुआ है पर नहीं. टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट इज अबाउट मैनेजिंग आवरसेल्व्स so that we could go on to use that time more effectively, more productively, so that we go on to use that time to achieve more. So if I were to define it, I will probably use this, that it is an understanding of how the hours in a day are spent and the prioritization of tasks to maximize personal efficiency in the workplace. और यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ workplace, यू आर फॉर मी अ प्रोफेशनल कैट एस्पिरेंट. नाउ आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं जो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू होल्ड यू टू दैट सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आई होल्ड अ वर्किंग इंडिविजुअल टू. हाँ, सो बेसिकली यार दो चीजें, आपके पास कुछ टाइम अवेलेबल है और आपके कुछ कमिटमेंट्स हैं, टास्क हैं जो आप करना चाहते हैं. सो उस टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा टास्क जो कि इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टास्क हो उन्हें कैसे किया जाए, दैट इज द एसेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. और मैं कभी कभी ना क्लास में जब बात कर रहा होता हूँ इन पर्सन, तो आई जनरली से दैट गुड टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट E plus E. And let me share this formula with you too. So this E plus E is effectiveness plus efficiency is equal to good time management. Now what do we mean by effectiveness? Effectiveness is that the task that you engage in, did it allow you to produce a desired result? जैसे देखो, कैट की प्रिपरेशन तो हर कोई कर सकता है ना, बट आर यू preparing in such a way that it leads you to be in the top 1% of the students? If you can, that's effective. And efficiency is all about input versus output. क्या आपने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम अकम्प्लिश किया. तो अगर आप इन दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इफ यू कैन manage the results that you want within the time that you have, then we'd say that you are good at time management. अब what is it that stops us from doing it? क्यों स्ट्रगल होती है? सो आई से व्हेन इट कम्स टू द चैलेंजेस, यार काफी सारे अलग अलग तरह के इश्यूज, अलग अलग तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द इशू कैन बी, यार यू डोंट इवन हैव गोल्स. हमने अभी क्या बात की, कमिटमेंट्स हैं हमारी, उनको मीट करना है. कमिटमेंट्स ही नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो जिंदगी ऐसे ही गुजरती जाएगी. सो
वो एक इशू हो सकता है, डिलेइंग योर टास्क्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो एक इशू हो सकता है. You may have weak systems, you know, maybe you are somebody who has not, who does not have a very organized plan of preparation. Maybe you are working on too many things at the same time, perhaps you are overwhelmed. नहीं, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो दैट फॉल्स अंडर वीक सिस्टम फॉर मी. फिर ऑब्वियस सी बात है यार, डिस्ट्रैक्शंस तो होती हैं सबकी जिंदगी में, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें. तो आइए बात करते हैं हाउ वी कैन गो अहेड एंड डील विद दिस. सो प्रॉब्लम वन दैट आई सी विद अ लॉट ऑफ पीपल इज पुअरली डिफाइंड गोल, और इनफैक्ट प्लूरल भी बोल सकते हैं आप इसे, गोल्स. यार अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, या है मगर आपने उसे बहुत क्लियर नहीं किया, बहुत कॉन्क्रीट नहीं बनाया, तो देन इट इज गोइंग टू रिमेन अ बिट ऑफ एन इशू फॉर यू. हाँ, सो इसमें हमारा सॉल्यूशन क्या है? जब भी आप किसी भी परसूट को शुरू करें, सो स्टार्ट ऑफ बाय राइटिंग दिस वन सेंटेंस, एंड दिस इज दैट सेंटेंस: यू नीड टू हैव क्लैरिफाइड एंड आइडेंटिफाइड गोल्स. हाँ, सो आइडेंटिफाइड इज मुझे पता है क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, somebody may say, यार माई आइडेंटिफाइड गोल इज टू डू एन एमबीए. बट देन अब देखो, एमबीए तो कहीं से भी हो जाएगी. उसे क्लैरिफाई करें तो इट विल टॉक अबाउट विच पर्टिकुलर कॉलेज, राइट? माई आइडेंटिफाइड गोल कुड बी आई नीड टू लूज वेट. क्लैरिफाइड वुड बी हाउ मेनी किलोज. तो जब तक वो क्लैरिफाई नहीं करेंगे तब तक वो गोल बहुत प्रिसाइज नहीं बनेगा. सो आपकी जिंदगी में जो भी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, एटलीस्ट उन्हें एक बार लिख करके रख लीजिए. नाउ इट डज नॉट मीन दैट यू कैन गो अहेड एंड वर्क ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुगेदर, बट उनमें से जितनी चीजें आप कर पाएंगे, खासतौर पे वो जो आपस में कंपैटिबल भी हो, तो वो प्रोसेस आप इससे शुरू कर सकते हैं. सो इफ यू आर अ कैट एस्पिरेंट, आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट विच कॉलेज और विच सेट ऑफ कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग. और वो सेट भी ना, व्हेन आई से सेट ऑफ कॉलेजेस, वो भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. आई एम सेइंग जस्ट थिंक ऑफ योर ड्रीम कॉलेज एंड पुट इट हियर. इसी तरह से हो सकता है आप कॉलेज में काम कर रहे हो, मे बी यू हैव सम गोल रिलेटेड टू योर कॉलेज, पुट इट डाउन देयर. हाँ, सो वंस यू मेक दैट क्लैरिफाइड, फिर आप एग्जैक्टली जान पाएंगे कि आपको किस तरह की और कितनी एफर्ट देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बिकम एक्सेलेंट. सो स्टार्ट हियर. इफ यू हैवंट डन दैट, स्टार्ट हियर. ओके. फिर प्रॉब्लम नंबर टू, प्रोक्रास्टिनेशन. हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन इज डिलेइंग थिंग्स, यू नो, जस्ट डूइंग थिंग्स लेटर. जो काम अभी कर सकते हैं उसे नहीं किया. तो इसके लिए हम क्या किया कर सकते हैं? व्हाट इज द फिक्स फॉर दिस? आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन वर्क ऑन मोटिवेशन. अब फ्रैंकली मैं सच कहूं तो मोटिवेशन ना, मैं थोड़ा ओवररेटेड मानता हूं उसे. मुझे लगता है कि जो प्रोसेसेस हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो हैबिट्स हैं, they are the ones which are a lot more important, but it does not mean that I discount motivation completely. मोटिवेशन का डेफिनेटली अपना फायदा है, ये आपको काम शुरू करने में बहुत हेल्प करती है. तो अब मोटिवेशन के लिए क्या कर सकते हैं? मोटिवेशन के लिए आपके पास कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज कैन बी सम सेल्फ हेल्प बुक्स, राइट? तो कोई भी सेल्फ हेल्प बुक उठा ले, जैसे यू कैन विन उठा लिया. हाँ, जैसे सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल उठा लिया, व्हाटएवर. तो सेल्फ हेल्प बुक्स को ना, मेरा सजेशन ये रहेगा कि रोज रात को सोने से पहले कुछ पेजेस पढ़ लें, रोज सुबह उठकर फिर से इसके कुछ पेजेस पढ़ लें. इससे यू विल स्टे अलाइंड, इससे आपकी वो रेगुलरिटी बनी रहेगी, और जिस तरीके से इन किताबों को एज अ रिजल्ट यूज किया जाना चाहिए, होपफुली आप उस तरीके से इन्हें यूज कर पाएंगे. और सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स ही नहीं, मे बी देर आर सम पीपल इन योर लाइफ, व्हेन यू गो टॉक टू देम, दे मेक यू फील ऑल चार्ज्ड अप. हाँ, तो वो होगा. बट देन मोटिवेशन में ध्यान रखिएगा कि मोटिवेशन इज अ फाइनाइट रिन्यूएबल रिसोर्स. अगर आप आज मोटिवेटेड हैं तो अब ये परपेचुअली अगले कई महीने तक चलेगा नहीं. इट्स लाइक आप आज अगर नहाए हैं तो अब ये थोड़ी है कि अगले 6 महीने नहीं नहाएंगे तो चल जाएगा, नहाते रहना पड़ेगा. सो खुद को मोटिवेट भी करते रहना पड़ेगा. तो एक्सटर्नल सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लें, दैट कैन हेल्प यू मोटिवेट. बट देन एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलायंस जितना कम हो उतना अच्छा. So how about backing ourselves? How about discovering
इंटरनल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। तो सोच के देखिए, जब आप सोचते हैं कैट की तैयारी करने का, व्हेन यू थिंक ऑफ टारगेटिंग एमबीए फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, तो आप क्यों जाना चाहते हैं उस कॉलेज में? आर देयर सम बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग इनटू दैट कॉलेज? यस। यू मे से कि सर आई विल हैव ग्रेट करियर, बट ग्रेट करियर मतलब क्या? पैसा, स्टेटस, किस तरह की पोजीशन, किस तरह के रोल्स, वही सब चीजें ना। और पैसे से भी क्या करना है हमें? कुछ चीजें खरीदनी है क्या? सो थिंक ऑफ दोज एंड पॉइंट्स। Maybe you want to have a particular kind of house, maybe you want to have a particular type of car, maybe you want to own a particular phone or gadget, maybe you want to ensure that you are able to send your friends and family on a trip without bothering about your bank balance. और काफी intangible चीजें हो सकती हैं इस तरह की, है ना? Maybe you want to see that look on your father's face, your mother's face when you tell them that I've made it to IIM Ahmedabad or I've made it to an FMS, right? So ऐसा, तो वो इंटरनल। तो जब भी आपको लगे कि यार मैं काम नहीं कर रहा हूं, वापस आइए और सोचिए कि ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी, बेनिफिट्स जो लिखे थे मैंने अपने गोल को अचीव करने के, मैं ना पढ़ के इन बेनिफिट्स को छोड़ रहा हूं। So it is not about studying or not studying, it is actually about whether you want these things badly enough in your life or not. And if you want these things badly enough, if you're truly hungry for them, you definitely go ahead and work. Then try and remove friction. अब यहाँ friction से मेरा मतलब क्या है कि कोई भी काम शुरू करने में अगर कुछ टाइम लगेगा, कुछ एफर्ट लगेगी, so chances are that you may not do it. For example, मैं, मेरे colleagues, हम लोग बहुत बार आपको बोलते रहते हैं that you should start reading. अब मान लीजिए आपने अभी सोचा कि oh let's read, पर अब आपके पास किताब है ही नहीं, या अच्छा किताब है भी तो वो घर के किसी इनएक्सेसिबल से कॉर्नर में रखी है जहां पे उठ के जाकर के लाने में आपको 1 मिनट लग जाएगा। तो हो सकता है कि उस 1 मिनट में, उस 60 सेकंड के अंदर अंदर आपका वो एंथुसियाज्म चला जाए। तो कोशिश ये करनी है कि ऐसी सारी चीजें जिनको करना आपके लिए चैलेंजिंग है, उनको अपने आसपास ही रखें। तो मेरे घर में, मेरे बेड साइड टेबल पे हमेशा 2 किताबें रहती हैं, so that whenever I feel like reading, it's there just at an arm's length. हाँ, आप इनफैक्ट डिसाइड करके छोड़ सकते हैं कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है, कितने बजे पढ़नी है, कहाँ बैठ के पढ़नी है, उसे कहाँ छोड़ना है। So try to make these things as easy for you to begin as you possibly can. तो फ्रिक्शन थोड़ा रिड्यूस कीजिए। इसके अलावा फॉलो द 2 मिनट रूल। आपके पास बहुत सारे काम आएंगे, अगर कोई भी काम ऐसा है जो 2 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है तो उसे डिले करने की, उसे टालने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर दैट यू गो ahead and do it right away. In case it is a longer task, then you can schedule it for later, और उसमें भी use time blocking. हाँ, so on my calendar I have time boxes and I have time containers. So यहाँ बॉक्स से मेरा मतलब क्या है? बॉक्स से मेरा मतलब होता है यार 2 से 5 घंटे का एक ब्लॉक, जो मैंने अपने कैलेंडर पे छोड़ दिया कि यार अब जैसे मुझे आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट का सेशन लेना था, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने अपने कैलेंडर में पिछले कुछ दिनों से 2-2 घंटे ब्लॉक किए हुए थे कि इस 2 घंटे में बैठ करके मैं सिर्फ आपके लिए इस सेशन की तैयारी करूंगा, राइट? तो अगर आप हर रोज एक बड़ा बॉक्स किसी इंपॉर्टेंट टास्क के लिए एलोकेट कर पाते हैं, तो अ लार्ज चंक ऑफ योर प्रॉब्लम इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। और इसके अलावा देयर आर दीज टाइम कंटेनर्स। आपको पता है ना, बॉक्स बड़ा होता है, कंटेनर्स छोटे होते हैं। तो मैं अपने कैलेंडर में 15 से 30 मिनट के चंक्स भी रखता हूँ। कुछ ऐसे काम भी होंगे ना जो 15 मिनट ही लेंगे, जैसे यार मैं आपको जनरली बोलता हूँ यार 25 मिनट की रीडिंग रोज करनी है, तो एक 25 मिनट एक कंटेनर रखा हुआ है ना रीडिंग का। 15 मिनट वोकैब्युलरी को रोज देने एक कंटेनर रखा हुआ है, 15 मिनट कैलकुलेशन स्किल्स को देने एक कंटेनर रखा हुआ है, राइट? तो एटलीस्ट एक टाइम बॉक्स हर रोज और कुछ कंटेनर्स असाइन करके, ब्लॉक करके छोड़ दें कुछ स्पेसिफिक टास्क्स के लिए, so that you are able to be regular with those tasks. Additionally, use the Pomodoro technique. Pomodoro technique बेसिकली क्या बोलती है कि यार आप ना थोड़ी देर पढ़ो फिर ब्रेक लो। अब वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड पोमोडोरो इज फॉर 20 मिनट्स। तो मैं पोमोडोरो यूज करता हूं, पर आजकल मैं 20 मिनट की जगह 25 मिनट के पोमोडोरोज यूज करता हूं। वो लेट्स से 20 मिनट किया काम, फिर 5 मिनट का लिया ब्रेक, फिर 20 मिनट काम, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 20 मिनट काम, और फिर एक लंबा ब्रेक।
उसके बाद ही नहीं, 3 सेशंस लग गए, 5-5 मिनट के बीच में 2 ब्रेक भी आ गए, उसके बाद में मैं शायद 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का हो सकता है ब्रेक ले लूँ। हाँ, सो टिपिकली आप इसके बाद ये ब्रेक के पीरियड्स हैं, टिपिकली इसके बाद एक 15 मिनट का ब्रेक डाल सकते हैं आप। सो यू वुड सडनली नोटिस दैट यू आर एबल टू अकम्प्लिश अ लॉट. Particularly if you're somebody who's working and is getting back into the mode, the study mode after a gap, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। पर हाँ, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि 20 मिनट की जगह पे आप 25 या 30 मिनट के पोमोडोरो लीजिए। हमारे लिए और आप में से ज़्यादातर लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है कंसंट्रेशन स्पैन की, यू कैन ईज़िली सिट डाउन फॉर 30 मिनट्स। तो अपना पोमोडोरो लगाया, 30 मिनट के बाद ब्रेक ले लिया, सो यू कैन डू दैट। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3, पुअर सिस्टम। वी डू नॉट हैव प्लान्स, we do not have tracking mechanisms, and that leads to a big issue. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, सिस्टम बना लेना। हाँ, अब सिस्टम में क्या बनाना है? अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट ऑल आई एम सपोज टू डू। मुझे करना क्या क्या है, इन अदर वर्ड्स फिगर आउट द सिलेबस कि यार ये 50 चीजें हैं, ये 100 चीजें हैं जो मुझे करनी है। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ फेयर बिट। उसके बाद इस पूरे सिलेबस को अपने मंथली और वीकली गोल्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे अब कैट का सिलेबस है तो यार मुझे लगता है 4 महीने या 5 महीने में सिलेबस तो पूरा हो ही जाना चाहिए। सो हियर वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ, आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑन February। तो अगर मैं देखूं तो आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, ज्यादा से ज्यादा जुलाई। हाँ, तो आप जुलाई एंड तक सिलेबस पूरा कर सकते हैं। और जनरली मैं कैट एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि यार जब भी शुरू करो, 15 अगस्त इज अ नाइस डेट। उस दिन सिलेबस से आजादी, 15 अगस्त तक तो सारा सिलेबस कंप्लीट कर ही लेना है। कोशिश वैसे 4 महीने की करनी चाहिए कि 4 महीने में सिलेबस पूरा हो जाए, ताकि उसके बाद फिर आप उस सिलेबस को मास्टर करने की तरफ बढ़े, टेस्टिंग की तरफ बढ़े, स्टैमिना बनाएं। हाँ, टेस्ट देने का, तो उन सब चीजों की तरफ तब आप जा पाएंगे। सो मंथली और वीकली गोल्स में डिवाइड करें, और हर रात सोने से पहले जस्ट गो अहेड एंड प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। तो पिछले 2 पॉइंट्स में मैंने जो आपको बताया, उसको जब आप इसके साथ ऐड करेंगे, वो आर्टिफिशियल सेंस ऑफ अर्जेंसी डाल करके, अपने डेडलाइंस डाल करके, तो बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ज्यादातर बार तो हमें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली आज करना क्या है, और इसी वजह से बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। इसके और भी तरीके हैं। मेरे पास एक बोर्ड है घर पे, मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मेरे पास जब भी कोई काम आता है, मैं एक पोस्ट इट लगा देता हूँ यहाँ। जब मैं उस काम को शुरू करता हूँ, पोस्ट इट चला जाता है बीच में, जब वो काम पूरा हो जाता है, पोस्ट इट चला जाता है थर्ड कॉलम में, वे थिंग्स आर डन, और उसके बाद में उतर के चला जाता है वेस्ट बास्केट में, डस्टबिन में। राइट? सो अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स हैं, और इसके अलावा डेली टू डू लिस्ट तो है ही। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोज रोज ही करनी होती हैं, तो उनको अब बार बार क्या स्टिकर्स लगाने। सो आई यूज एन ऐप कॉल्ड टूडूइस्ट, और इस तरह की और काफी सारी एप्स आती हैं, टिक टिक आता है, गूगल टास्क आते हैं। जो भी आप यूज करना चाहें करें। तो इनमें एटलीस्ट एवरीडे वाले टास्क तो वैसे ही डाल के छोड़ दिए, वो रोज रोज शो अप करते रहेंगे। और जब भी कोई नया काम आया, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड जरूर कर लीजिए, और यहाँ से रिकॉर्ड करके फिर अगर वो एक प्रोजेक्ट है, एक चैप्टर की तरह की कोई चीज है, तो उसे अपने कैलेंडर में कहीं रोज साथ साथ डाल दीजिए, टाइम ब्लॉक कर लीजिए, तो पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट डूइंग दिस। राइट? और हफ्ते में एक दिन बैठ करके रिव्यू कर लिया कीजिए कि मेरा जो वीकली गोल्स थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो फिर अगले हफ्ते थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डाली जाए। राइट? सो दैट विल हेल्प। पर यहाँ पे एक कंसर्न है जो इतना ज्यादा पूछा जाता है कि frankly I have gone on to put it as a separate problem altogether, and I hope you'd probably look at it. You could perhaps tell me कि यार विक्रांत, पता है मैं ना टू डू लिस्ट बनाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी टू डू लिस्ट यार पूरी नहीं हो पाती, मैं उस पे काम कर ही नहीं पाता। तो अब काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए? तो मैं आपको बताता हूं क्यों लोगों को टू डू लिस्ट के साथ काम करने में होती है स्ट्रगल। सो आई विल गिव यू 3 वेरी प्रिसाइज पॉइंटर्स। इफ यू फॉलो दोस, your to-do lists will become sensible and highly usable. So what are those 3 pointers? Point number 1, the to-do list is a plan of your day. It is not a plan of your tasks. तो बहुत सारे लोग जब to-do list बनाते हैं ना, वो सिर्फ ये लिखते हैं कि मुझे क्या-क्या करना है, क्या-क्या पढ़ना है। नहीं, ये क्या-क्या पढ़ना है की लिस्ट नहीं है।
ये कल हर चीज जो आपने सोची है कि मैं करना चाहूंगा वो सब आप डालेंगे। तो क्या क्या करना है, मतलब अगर आप कल मूवी देखने जा रहे हैं तो यहां होगा, आप कल अपने कजन्स से मिल रहे हैं, अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, वो यहाँ पे होगा, राइट। सो दिक्कत क्या है, अब आपने मूवी देखने जाना था, मूवी देखने को आपको लगा यार ये थोड़ी टू डू लिस्ट में डालने की जरूरत है, तो मुझे पता ही है। बट देन चूंकि आप मूवी देखने जा रहे हैं तो उस दिन आपके पास 3 से 4 घंटे कम हैं एज कंपेयर टू अदर डेज। तो आप उसी हिसाब से फिर बाकी की चीजें अपनी लिस्ट में ऐड कीजिएगा, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि बाकी दिनों जितना काम ही डाल दिया। सो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर यूड बी ओवरवेल्म्ड। सो एवरीथिंग दैट यू प्लान टू डू एंड नॉट जस्ट योर टास्क्स और स्टडीज गो हियर। नंबर टू, कीप इट टास्क ओरिएंटेड एंड नॉट टाइम ओरिएंटेड। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो जब टू डू लिस्ट बनाते हैं तो पता है क्या करते हैं, वो लिखते हैं थिंग्स लाइक यार मैं ना एरिथमेटिक पढ़ूंगा 2 से 3। हाँ, अब ये आप देख रहे हैं, ये तो टाइम ओरिएंटेड हो गया, 1 घंटा पढ़ना है। इज इट यूजफुल? विल इट बी इनफ? इट्स लाइक लेट्स से मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना है और 5 दिन है मेरे पास। अब मैं अपने प्लान में अगर लिखूं कि मैं रोज 1 घंटा चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा क्या? पता नहीं। कितनी देर चलना है दैट इज इररेलेवेंट। मुझे हर रोज 10 किलोमीटर चलना है दैट इज रेलेवेंट, है ना। उसी तरह से आपको पता है ना, सिलेबस में 100 चीजें करनी है और उसमें अगर हर रोज एक चीज होनी है तो होनी है, उसमें जो टाइम लगेगा सो लगेगा, राइट। तो टाइम के हिसाब से नहीं लिंक करिए, टास्क के हिसाब से लिंक करिए। और सिर्फ वही नहीं, कीप दोज टास्क वेरी स्पेसिफिक, right? To give you an example, a very specific task oriented activity will be कि यार मैं कल बैठूंगा और वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 9 और 10 करूंगा। तो अदरवाइज क्या हुआ, देखो वो क्या, अगर मैंने सिर्फ ये लिखा वो कैब करूंगा तो यार 2 वर्ड सीखे तो भी वो कैब, 20 सीखे तो भी वो कैब। द मोमेंट आई पुट इट डाउन हियर, आप देख रहे हैं एकदम स्पेसिफिक हो गया है। अब मुझे पता है कि क्या करने पे मेरा ये टास्क आज का पूरा हो जाएगा। सो इफ यू यूज दीज 3 थिंग्स, the probability of your making a to-do list which is sensible and the probability of your adhering to the to-do list will also become very high. Yet another problem that people face is that they at times do not prioritize. Now, let's face it, आपके टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो करने वाली होंगी, मगर उनमें से सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हो ऐसा तो नहीं है ना, isn't it? तो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या जो चीजें ज्यादा चैलेंजिंग हैं उनको थोड़ा स्पेशल फोकस देके करना पड़ेगा ना। So here are a few things that I'd share with you. The very first one is this lesson called Put the Big Rocks in First. Now, what do we mean by this? So one fine day, a professor walked into his classroom. He was carrying a glass jar. He kept the jar on the table. Then he picked up his bag. He took out some rocks from his bag and put them in the jar right to the very top. वो rocks से, पत्थरों से बिल्कुल ऊपर तक भर दिया। हो गया। फिर he looked at everybody and asked, "Hey, can we put something in this jar now?" So a lot of people said no, some people said yes. He said, "Oh, terrific." So वो फिर से अपना बैग उन्होंने उठाया, उसमें उनके पास एक पैकेट था, किस चीज का, पेबल्स का, कंकड़ का। पहले पत्थर डाले थे, रॉक्स डाले थे, नाउ ही टुक आउट पेबल्स। तो पेबल्स डालते रहे, जार को हिलाते रहे, डालते रहे, हिलाते रहे और एकदम ऊपर तक अब पेबल से भर दिया। नाउ ही आस्क्ड एवरीबॉडी, कैन वी पुट समथिंग इन इट नाउ? And now people like, oh, कुछ तो catch है, कुछ तो जाएगा, I love this. People said yes. He said fabulous. So he took out a packet of sand, रेत, बालू, मिट्टी, और वो उसमें उन्होंने डाल दी। यार मिट्टी भी ऊपर तक आ गई। Now he asked everybody, can we put something in it now? तो अब तक तो लोगों को लगा हाँ कुछ तो जाएगा, कैच है दूसरा, फैबुलस। तो उनके टेबल पे एक वाटर बॉटल पड़ी थी, उन्होंने उसको डाल दिया और जार को पूरा भर दिया। नाउ व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम हियर? पॉज करिए, सोचिए, बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे आपको। मुझे उम्मीद है कि आप सोच करके वापस आए हैं मेरे पास पॉज करने के बाद। बट वन वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर इज अबाउट प्रियोरिटाइजिंग, एंड दैट इज
पुट द बिग रॉक्स इन फर्स्ट। देखो, अगर पत्थर डालने से पहले कंकड़ डाल दिए जाते तो क्या पत्थर डलते? अगर आप सबसे पहले रेत डाल देते तो कंकड़ और पत्थर दोनों ही नहीं डलते। तो बिग रॉक्स यानी कि वो चीजें जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या वो चीजें जो आपके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है, उन्हें आप पहले करें। और घबराए मत, इन केस यू नॉट वेरी श्योर ऑफ हाउ डू आई डिटरमिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज चैलेंजिंग, वो वी आई विल कंटिन्यू गिविंग यू सम मोर इनपुट्स फर्दर अप, बट जो जितना ज्यादा चैलेंजिंग वो उतना पहले करना है। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं अपनी टू डू लिस्ट को ना जब पढ़ता हूँ सुबह उठ करके, तो मैं देखता हूँ कि कौन से वाले काम को करने को लेके मेरे अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, कौन सा काम है जिसको देख के मुझे लग रहा है यार ये नहीं करना मुझे, यार ये क्या है यार। तो जिसको करना मुझे सबसे कम पसंद है, मैं उस काम को सबसे पहले करता हूं। सो पुट द बिग रॉक्स इन फर्स्ट। यू डोंट लाइक रीडिंग, आप रीडिंग पहले करेंगे। यू डोंट लाइक क्वांट, आप क्वांट पहले करेंगे। नहीं तो ज्यादातर बार क्या होता है, हम आसान आसान चीजों को करते रहते हैं और फिर रात हो जाती है और फिर वो मुश्किल चीज उठाते हैं तो हमें नींद आ जाती है, तो फिर चीजें टल जाती हैं। सो डोंट डू दैट। ओके, सो एक तो ये। दूसरी चीज, परेटो प्रिंसिपल, ये खासतौर पे इफ यू आर वर्किंग देन इट इज फॉर यू। देखिए, परेटो प्रिंसिपल ये बोलता है, इट्स आल्सो कॉल्ड द 20-80 रूल। ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, तो आप देखेंगे कि 20% ऑफ योर कस्टमर्स ब्रिंग इन 80% ऑफ योर रेवेन्यू। ठीक इसी तरह से आप जो एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, आप देखेंगे 20% ऑफ योर एक्टिविटीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस 80% ऑफ द रिजल्ट्स। तो आप ये जो 20% एक्टिविटीज जो आउटसाइज रिजल्ट्स दे रही हैं आपको, आप उन्हें प्रियोरिटाइज करिए। और इसके अलावा आप इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इन आवर एवरीडे लाइफ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टास्क्स दैट वी कैन एंगेज इन। चेक दिस, दिस, दिस एंड दिस। सो बेसिकली यहां वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये वो चीजें हैं जो नॉट इंपॉर्टेंट है। दीज आर थिंग्स विच आर अर्जेंट। अर्जेंट काम वो जो जब आपके पास आए आपको तभी करना है। दीज आर थिंग्स दैट आर नॉट अर्जेंट। तो 4 तरह के हमारे पास काम है। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दीज टास्क्स। ओके, तो फायर फाइटिंग, प्रेसिंग इश्यूज, कुछ मीटिंग्स ऐसी होंगी जिनको आप डिले कर ही नहीं सकते। कुछ फोन कॉल्स, अब फोन आता है तो उठाना ही पड़ता है, बट सारे फोन कॉल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ फोन कॉल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? ऐसे ही नॉट अर्जेंट वाली चीजें, थिंग्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट बट, ये वो हमारा अर्जेंट वर्सेस नॉट अर्जेंट वाला स्केल, राइट? तो आपको क्या लगता है, आपको इन 4 बॉक्सेस में से किस बॉक्स में ज्यादातर समय बिताना चाहिए? हमें सुपरफिशियली देख के लगेगा कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, बट द ट्रूथ इज ज्यादातर काम जो हमारे पास आते हैं वो अर्जेंट होते ही नहीं। ज्यादातर काम जो हमारे पास आएंगे वो शायद बाकी 3 ब्लॉक्स में आएंगे। अब इसमें एक बार डिफाइन कर लें, इंपॉर्टेंट से हमारा मतलब क्या? एनीथिंग दैट टेक्स यू टुवर्ड्स योर गोल्स इज इंपॉर्टेंट, एनीथिंग दैट डज नॉट टेक यू टुवर्ड्स योर गोल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट आपको पता ही है। हाँ, तो अब थोड़ा और सोचूं तो यार, दोस्तों के साथ मिलना, नीदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट। गोल्स के हिसाब से सोचना है, ठीक है? नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, ये कैसे काम होंगे? फोन कॉल्स, ज्यादातर फोन कॉल्स, जितने भी फोन्स तुम्हारे पास आते हैं, सोच के देखो कितने फोन इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत कम। लेकिन फोन बजते ही उठाना अर्जेंट हो जाता है ना। हाँ, लॉन्ड्री, कुकिंग, गोल्स के हिसाब से यूजफुल नहीं है। अब ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास आएंगी इस बॉक्स में, और हम लोग उन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करके, टाल टाल करके यहां से यहां भेजते हैं। और इस प्रोसेस को आपको और मुझे रोकना है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यार, हर साल के शुरुआत में आपको पता होता है, अगर सेमेस्टर सिस्टम में तो 6 महीने बाद पेपर होंगे, ईयर सिस्टम में तो 1 साल बाद पेपर होंगे। तो एग्जाम्स हैं और एग्जाम्स के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मगर जब वो काम आपके पास आता है तो वो इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है। हम डिले कर करके उसे अर्जेंट बना लेते हैं। जिस दिन कैट की नोटिफिकेशन आएगी, उस दिन आपको पता है कि आपको फॉर्म भरना है, आपको अप्लाई करना है, उस दिन वो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। बट आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लास्ट डेट का इंतजार कर रहे होते हैं।
वो लास्ट डेट पे जाकर के फॉर्म फिल करते हैं जब तक वो अर्जेंट नहीं हो जाता। तो इसे रोको, इस एरिया को, इंपॉर्टेंट अर्जेंट को कंटिंजेंसीज के लिए, इमरजेंसीज के लिए खाली छोड़ो और यहां जियो। हर रोज सुबह उठ के देखो कि कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इनमें से अर्जेंट है तो उसे पहले करो, अदरवाइज ज्यादातर जगह पे अर्जेंट चीजें आएंगी नहीं, तो वो आर्टिफिशियल सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाए, राइट, और फिर उसके हिसाब से अपना काम करें। अब यहां पे देखो, बहुत सारे लोग जो कॉलेज में बोलते हैं सर कॉलेज की पढ़ाई भी है, कैट की पढ़ाई भी है। आई एम सेइंग कॉलेज की पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मार्क्स आर a rather important factor for a lot of colleges when they shortlist you, isn't it? तो आप कॉलेज की पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद जो समय बचे उसे कैट की प्रिपरेशन में दे दें। सेम गोज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। यू लाइक सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं रोज 10 घंटे 11 घंटे वर्क प्लस कम्यूट में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके पास रोज 1 घंटा है तो 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा है आधा घंटा दीजिए। वो उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो यहां करिए। हाँ, पर उसमें कुछ कुछ स्मार्टली चीजें करना शुरू कर सकते हैं, जैसे यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर कम्यूट फॉर प्रिपरेशन। भाई कम्यूट में पढ़ाई क्यों ना कर ली जाए टाइम वेस्ट करने की जगह, ब्रेक्स में पढ़ाई क्यों ना कर ली जाए टाइम वेस्ट करने की जगह, वीकेंड्स में ज्यादा एफर्ट क्यों ना कर ली जाए टाइम वेस्ट करने की जगह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है आपको लग रहा हो, सिर्फ लग रहा हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, इन रियलिटी आपके पास टाइम हुआ तो टाइम कीपिंग करके देख लें, जैसे बुक कीपिंग होती है। फॉर द नेक्स्ट वीक आई जस्ट वॉन्ट यू टू जॉट डाउन एवरीथिंग दैट यू डिड। कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने 5-7 मिनट से ज्यादा दिए वो लिख लें, राइट। नहाने में 10 मिनट गए लिख लें, दोस्त से बात की 10 मिनट गए लिख लें, पढ़ाई की 2 घंटा लिख लें, जो भी किया लिख लें और उसके बाद टोटल करके देखें। सो बहुत बार आप तो ऐसा होगा कि आपको रियलाइज होगा कि वो द टाइम वाज गेटिंग वाइल्ड अवे, वेस्टेड अवे, टाइम था मगर वी फ्रिटर्ड इट ऑल अवे, वी लॉस्ट इट ऑल अवे हियर एंड देयर। ओके, तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा प्रियोरिटाइज करने में हेल्प मिलेगी। और टाइम कीपिंग, इफ यू थिंक यू जेन्युइनली ओवरवेल्म्ड, एक बार टाइम कीपिंग करके देख लीजिए, ताकि आपको और मुझे पता चल जाए कि वाकई में टाइम कम है और काम ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो वेस्ट हो रहा हो, हमें पता ही ना चल रहा। So that will automatically help you. And then we have this sixth and the last problem called distractions. यार मैंने सब बना लिया, मैं पढ़ने भी काम करने भी बैठ गया, लेकिन फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, तो क्या करें? तो यार देखो, सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगी कहां से, इसका फिक्स क्या है? ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास से, हमारे नॉन इंडिविजुअल से ही आती हैं। सो कीप एवरीबडी इन द लूप। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला दोस्तों के साथ टाइम बिताना इज नीदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट। अच्छे दोस्तों के साथ टाइम बिताने की कोई प्री कंडीशन नहीं है, नेसेसिटी नहीं है वो। Why don't you sit down with your friends and family members and tell them कि भाई देखो, मैं कर रहा हूं तैयारी, मेरे पास टाइम की है कमी, मुझे चाहिए तुमसे सपोर्ट। अब तुम बताओ कैसे सपोर्ट कर सकते हो, कैसे मेरी जिंदगी आसान कर सकते हो, कैसे मेरी जिंदगी से फ्रिक्शन हटा सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस हटा सकते हो। और इनसे मिलने का टाइम फिक्स कर लो ना, कि यार ये महीने में एक दिन मिल लेंगे। सो दैट कैन हेल्प। इनफैक्ट इसी में अगर मैं थोड़ा आपको वापस ले जाकर के ऐड करूं, हाँ, तो हालांकि यहाँ पे है, बट आई एम नॉट सेइंग एलिमिनेट इट, आई एम सेइंग आप इसको ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों से हर हफ्ते मिलते हैं, हर दूसरे हफ्ते मिल लें, मूवी हर हफ्ते देखते हैं, हर दूसरे हफ्ते देख लें। ये जो चीजें जितनी भी है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, इनको डेलीगेट कर सकते हैं इन्हीं दोस्तों को, परिवार वालों को। उनके साथ मिलना जुलना थोड़ा कम करो, प्लस उनको यूज करो ना काम डेलीगेट करने के लिए। अगर वो काम कर देंगे आपके कुछ, तो आपकी जिंदगी में टाइम बढ़ेगा, फिर यू वुड बी एबल टू डू दीज थिंग्स एंड देन दीज थिंग्स। हाँ, ये कॉलम खत्म होते ही आप इसमें जिएंगे तो आपके पास यहाँ वैसे ही कुछ नहीं बचेगा मोस्ट ऑफ द डेज। तो यूज करें, उन लोगों से बात करें, उन लोगों की मदद लें, एंड द पीपल हु ट्रूली लव यू वुड लव टू हेल्प यू। उनको प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब उन्हें पता ही नहीं होता कि तुम कर क्या रहे हो और उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, एंड व्हाई यू कटिंग देम आउट ऑफ योर लाइफ। हाँ, तो वो बता दोगे तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। इसके अलावा यार सोशल मीडिया ना बहुत परेशान करता है। एक तो सोशल मीडिया के यूज में फ्रिक्शन क्रिएट करो, अपने फोन से सारे एप्स हटा दो। अगर उन एप्स पे जाना है तो ब्राउजर में जाकर के लॉग इन करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप में किसी और डिवाइस पे छोड़ो उसको। तो फ्रिक्शन क्रिएट होगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी। प्लस आई एम नॉट इवन सेइंग एलिमिनेट इट, मैं तो ये बोल रहा हूं कि यार अपने कैलेंडर में ब्रेक डालो सोशल मीडिया वाला। हाँ, तुमने 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद तुमने लिखा कि भाई मैं अब 10 मिनट इंस्टाग्राम पे जा, डाल लो। पर वो ऐसे नहीं कि वो मतलब जब मर्जी रैंडम उठा के इंस्टाग्राम में डूम स्क्रॉलिंग शुरू कर ली, वो नहीं कर सकते आप, राइट।
उसके अलावा काम वही करें जो अंदर से आ रहा है कि नहीं करना है। सो व्हेनेवर सम न्यू थिंग कम्स योर वे एंड यू आर थिंकिंग ऑफ कि भाई मैं ये करूं कि ना करूं, तो उसको लेके आपकी फीलिंग क्या हो सकती है? योर फीलिंग कुड बी हेल, या यू नो लेट्स डू इट। योर फ्रेंड्स कम टू यू से वही बाइक पे लद्दाख चले क्या, एंड यू लाइक यार ये तो करना है। तो ऐसी फीलिंग है तो करो, अगर ऐसी फीलिंग नहीं है तो वो काम करना ही नहीं है। एंड इवन इन जनरल लर्न टू से नो। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों के लिए आपकी मदद चाहते हैं। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो मदद करना भी चाहिए, बट बहुत बार हम खुद ऑक्यूपाइड होते हैं, बिजी होते हैं, हमारे गोल्स के लिए एडिक्वेट टाइम नहीं होता। वी एंड अप सेइंग यस एंड वी गेट सकर्ड इन। सो लर्न टू से नो पोलाइटली। इसके बहुत तरीके हैं, उन्हें सीखें आप। हाउ टू बी असर्टिव, हाउ टू से नो। हाँ, instead of straight away saying no, you can always say that, hey, I have a lot on my plate right now. If it's all right with you, can I help you with it next week? या कैन यू अप्रोच दैट अदर रिसोर्स, अदर इंडिविजुअल हु कैन हेल्प यू डू दैट? तो तरीके हैं, उन्हें यूज करें, तो उससे चीजों में कुछ बेहतरी होगी। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट ऑल अबाउट वर्क। अपने लिए भी बीच बीच में ब्रेक्स शेड्यूल कर ले। देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन टेकिंग अ डे और टू ऑफ एवरी मंथ, जिसमें आप वो चीजें कर रहे हैं जो जिनमें आपको बहुत मजा आता है, जो शायद गोल्स से रिलेटेड ही नहीं है। दोस्तों के साथ बैठ करके खुल के हंसना, उनके साथ बैठ के चाय पीना, पकौड़े खाना, यार जिंदगी उन मोमेंट से भी तो बनती है। तो ऐसे ब्रेक्स शेड्यूल करते रहे, हर महीने में एक दिन, हर क्वार्टर में 2 3 4 दिन। हाँ, सो दैट योर सैनिटी रिमेन्स इंटैक्ट, एंड इफ यू डू दैट you'd be able to achieve a lot. अब इन सारी चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस में डालेंगे तो यू रियलाइज कि इसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट डिसिप्लिन इज फ्रीडम। या तो आप खुद अपने आप को चला सकते हैं, नहीं तो दूसरे लोग आपको चलाएंगे। So, बेहतर यही है ना कि हम खुद अपने कंट्रोल में रहें, एंड दैट्स व्हाट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट। सो दैट इज गोइंग टू बी द ट्रू फ्रीडम फॉर अस। एंड प्लीज रिमेंबर, either you run the day or your day runs you. And I want you to run your day by using the strategies that we've talked about. अब आपको इसके अलावा और किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, you want to discuss any of these things in greater detail, you can reach out to me on my Telegram group, or you can always drop your comment here and we would love to assist you with that. So that's it from me in this particular session. Do put these things into practice, and I'll see you accomplishing a lot more in the weeks and months ahead. Have a great day ahead. Catch you later.